During the Old Testament time, the temple was a very important part of the Jewish people. पुराने नियम के समय में मंदिर जो है बहुत ही प्रमुख भाग था। Even now, there are a small portion of the old temple left out. They value it greatly. अगर हम देखते हैं कि पुराने नियम में छोटा सा मंदिर क्यों ना हो, लेकिन वो उसको बहुत ही विशेषता देते थे। Because the temple means they knew that they represented the place where God abides. मंदिर का मतलब ये है कि वो जहाँ पर परमेश्वर वास करता है उसको वो सूचित करता है, उनका मतलब था। That is why they gave so much importance in the temple of God. इसलिए वे लोग जो है पुराने नियम में बहुत ही महत्व देते थे उस मंदिर को। But in the New Testament, लेकिन नए नियम में Bible tells that your body is the temple of God. बाइबल कहता है कि तुम्हारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर है। We read that in 1 Corinthians chapter 6 verse 19. हम उसे देखते हैं पहला कोरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 19वें वचन में। We read there, your body, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? वहां पर इस तरह कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा के मंदिर है And you are not your own. और तुम अपने खुद के नहीं हो। Have you thought about it? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? This body, is it? Is it the temple of the Holy Spirit? आपने कभी सोचा है कि ये जो शरीर है ये हमारा पवित्र आत्मा का मंदिर है? That reality or that truth will really help us. ये सच्चाई जो है ये हमारी मदद करेगी। Bible tells that when we accepted Jesus Christ, the Holy Spirit came to us. बाइबल बताते हैं कि जब हम यीशु प्रभु को अंगीकार करते हैं तो पवित्र आत्मा हम में आकर बसता है। If the Holy Spirit is in us, we are not really believers. सॉरी, If the Holy Spirit is not in us, we are not really believers. अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम सच में विश्वासी नहीं है। So once we commit our life to Jesus, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन को सौंपते हैं we should know that our body is the temple of the Holy Spirit. हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। I want to share a few things which I was meditating during this week. मैं कुछ बातें बांटना चाहता हूँ जो मैं इस सप्ताह के अंदर में ध्यान मनन कर रहा था। From this passage, 1 Corinthians chapter 6 verses 12 to 20. इस भाग से जो मैं पढ़ रहा था पहला कोरिन्थियों 6वां अध्याय 12 से 20 तक में। I am not reading the entire passage, मैं उस पूरे पैसेज को मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, but this is a wonderful passage. When you get time, I would encourage you to read and reflect and meditate. ये बहुत ही अद्भुत पैराग्राफ है। आप सभी इस भाग को पढ़ सकते हैं जब आपके पास समय हो। But I want to pick and share a few things what is written there. और मैं तुरंत में मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। One of the things in the verse 12 itself is written that I must not become a slave to anything. और एक वचन ऐसा कहता है कि हमें किसी भी चीज का गुलाम नहीं बनना है। As God's children, we should not be a slave of sin, slave of food, slave of sinful habits. We should not be. हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें खान पान का या फिर किसी चीज का या हमारे शरीर का हमें गुलाम नहीं बनना है। We should seek to be joyfully, we should be happy slaves of Jesus Christ. हमें अपने इच्छा के अनुसार स्व इच्छा से हमें यीशु प्रभु का गुलाम बनना है। Sometime I shared that example in the Old Testament. मैंने कुछ समय में बांटा है पुराने नियम का उस एग्जाम्पल को। When some slaves, when they knew the goodness of their master, they don't want to seek freedom. It is far better to live with the master, even though it is so-called slavery. Such a blessing to be the slave of a good master. और पुराने नियम में हम देखते हैं कि कुछ लोग जो किसी मालिक का अगर गुलामी करते थे तो अगर मालिक अच्छा हो तो वे सोचते थे कि हम आजाद नहीं होना बल्कि उसी मालिक के अंदर ये जो अच्छा मालिक है इसके साथ हमें गुलाम बन के बने रहना है। So that is something we should remind ourselves and ask ourselves, whose slave I am now. इस बात को हमें अपने जीवन के अंदर हम खुद से पूछना है कि मैं किसका गुलाम हूँ। And in verse 13, और 13वें वचन में, 1 कोरिन्थियों 6वां अध्याय 13 वचन, we read there that
our bodies are made for the Lord. वहां पर ऐसा कहा गया है कि हमारा शरीर जो है परमेश्वर के लिए बनाया गया है And the Lord is for my body. और प्रभु जो है वो हमारे शरीर के लिए है। So that is again, that thought will help us. We should always remind, my body, it is made for whom? It is made for the Lord. ये वापस हमें बताता है, चेतावनी देता है कि ये जो मेरा शरीर है ये प्रभु के लिए बनाया गया है, To live for the Lord. ताकि हम उसके लिए जी सके। This body is for doing things which will please the Lord. ये शरीर जो उस काम को करेगा जो प्रभु को प्रसन्न करेगा। So it's good to know my body does not belong to me, it belongs to the Lord. तो ये जानना जरूरी है कि ये जो शरीर है ये मेरा खुद का नहीं है बल्कि ये प्रभु के लिए है, अर्पित किया हुआ है। And when we know that, there is a truth attached with that, then the Lord also will be for my body. तो जब हम इसे जानेंगे तो इसके साथ एक सत्य छुपा है कि प्रभु जो है वो इस शरीर के लिए भी प्रभु है। Yeah, the Lord will take responsibility for my body. तो प्रभु जो है मेरे शरीर की जिम्मेदारी उठाएगा। Or in other words, the Lord also cares for my body. दूसरे शब्दों में कहे तो प्रभु जो हमारे शरीर की देखभाल करेगा, परवाह करेगा। For example, during times when you are sick or when we are weak, that thought can encourage us. मानो कि हम कभी बीमार है तो उस समय में ये जो सोच है हमें प्रोत्साहित करेगा। This body belongs to the Lord. He will take care of it. ये शरीर जो है परमेश्वर का है और ये वो उसकी परवाह करता है। And almost same thing is again written in verse 15. और एक बात जो वापस 15 वचन में कहता है, It says that our bodies are, our organs are parts of Christ. और वहां पे कहता है कि हमारे शरीर के जो अंग है वो परमेश्वर के अंग है। That is in 1 Corinthians chapter 6 verse 15. पहला कोरिन्थियों 6वां अध्याय 15 वचन। Don't you realize that your bodies are actually parts of Christ? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर वास्तव में मसीह के अंग है? No, in another word, Paul is telling it is no more I who live, but Christ lives in me. दूसरे शब्दों में कहे तो पौलुस कहता है कि मैं अपने लिए नहीं जीता हूं बल्कि प्रभु मेरे अंदर जीता है। In other words, if Christ is living me in the form of the Holy Spirit, प्रभु जो है मेरे अंदर पवित्र आत्मा के जरिए मुझे लीड कर रहा है, अगुवाई कर रहा है। So my organs, my hands, my feet, my heart, my eyes, my mouth, everything belongs to Christ. ताकि मेरे शरीर के अंदर अंग जो है, मेरे आँख, कान, नाक, मेरे हाथ, पैर, सभी कुछ परमेश्वर के लिए है। It is Christ who living me, therefore my body is actually parts of Christ. क्यों ये प्रभु है जो मेरे अंदर रहता है, इसके लिए मेरे शरीर के अंग जो है वो परमेश्वर के अंग है। In the following passage, one particular sin is very powerfully emphasized. और आगे चल के हम देखते हैं कि उसी भाग में एक वचन जो है बहुत ही एक गंभीर पाप के बारे में बात करता है। That is in verse 18. वहां पर 18 वचन में कहता है, It says that run from sexual sin. वहां पे कहता है कि व्यभिचार से दूर रहो, उससे भागो। No other sin so clearly affects the body as this one does. कोई भी पाप शरीर को इस तरह से प्रभावित नहीं करता है जैसे कि ये व्यभिचार करता है। Because the sexual immorality is a sin against your own body. क्योंकि व्यभिचार आपके अपने शरीर के खिलाफ एक पाप है। So it's good to remind us about keeping our life pure and holy. तो ये हमें याद रखने की जरूरत है कि हमारे शरीर को हमें पवित्र और शुद्ध रखना है। There should not be questionable things in our life हमारे जीवन के अंदर सवाल करने वाले चीज नहीं होनी चाहिए, which defiles my body, which defiles my spirit. जो मेरे शरीर को खराब कर सके, जो मेरे आत्मा को खराब कर सके। And as a result, the Holy Spirit is grieved. और जिसके कारण जो है पवित्र आत्मा जो है शोकित करे, दुखी हो जाए। So it is in this context that it is written that don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit. और इस संदर्भ में कहा गया है कि तुम्हारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। So it's a tremendous responsibility upon us. तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। It's a great privilege also. तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात भी है।
To remind ourselves, God has entrusted such a precious thing to me. और परमेश्वर ने जो है बहुत ही अनमोल चीज जो है हमें दी है, My body, where the Holy Spirit dwells. और वो शरीर है जहां पर पवित्र आत्मा निवास करता है। And my body is supposed to function like a temple. और मेरा शरीर जो है वो एक मंदिर के समान कार्य करना है। Now, when you use that word temple, we attach some reverence. जब हम मंदिर का शब्द का प्रयोग करते हैं तब हम उसे बहुत ही आदर के साथ देखते हैं। So that is how we should think about our life, especially our physical body. तो उसी तरह हमारे शरीर को और हमारे जीवन को हमें सोचना है। It is a temple of the Holy Spirit. तो ये हमारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। That is a privilege and an honor which the Lord has. तो ये हमारे लिए सौभाग्य है और ये आदर की बात है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। Verse 20. 20वां वचन, And there it says that concluding passage says that you must honor God in your body. और वहां पे कहता है कि 20वां वचन में, इसलिए तुम भी अपनी देह के द्वारा परमेश्वर का आदर करो। Yeah, that is also something we can encourage us. I have this responsibility upon me to honor God through my body. इसके द्वारा हम ये जान पाएंगे कि ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है कि हम शरीर के द्वारा मुझे परमेश्वर का आदर करना है। The Lord's name should not be dishonored in my body. परमेश्वर का नाम जो है मेरे शरीर के द्वारा उसका अपमान नहीं होना है। In connection with Bible encourages about, for example, modest dressing. इसी संदर्भ को अगर हम आगे लेके जाए तो परमेश्वर जो है, प्रभु जो हमें अच्छे से शालीनता से कपड़े पहनने के बारे में हमें प्रोत्साहित करता है। Word of God encourages us to dress modestly. हमें प्रोत्साहित करता है कि हम शालीनता से कपड़े पहने। In other words, we are conveying message. This is a temple. और दूसरे शब्दों में हमें ये संदेश देना है कि ये परमेश्वर का मंदिर है। This is not to be offered to others to be tempted. और ये शरीर जो है ये हमें किसी को घूरने के लिए या फिर वासना के लिए नहीं दिया है। In Bible, in many places, encourages and challenges to give our life, offer our like a sacrifice to the Lord. बहुत जगह पर प्रभु जो है वचन जो है हमें प्रोत्साहित और चुनौती देता है कि हमारे शरीर को हमें एक बलिदान के रूप में अर्पित करना है। Yeah, we can voluntarily and joyfully give this precious gift to the Lord has given to Him. हमें स्व इच्छा से जो प्रभु ने हमें इस शरीर को दिया है उसे अर्पित करना है। As that verse which brother Joseph read, Romans chapter 12:1. जैसे कि भाई जोसेफ ने पढ़ा कि रोमियो 12:1 में। I just want to read it like this. Present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to the Lord, which is your spiritual service or worship. अपने शरीर को जीवित होकर हमें अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। So in the Old Testament time, paying tithe and going to the temple and praising, thanksgiving, that is all were parts of worship. और पुराने नियम में हम देखते हैं कि दशमांश देना और मंदिर को जाना, प्रार्थना करना, ये एक तरह का आत्मिक सेवा था। But now in the New Testament time, God is looking at our body, how we are presenting, how we are using, how we are preserving our body for the Lord. लेकिन नए नियम में प्रभु ये देखता है कि हम किस तरह हमारे शरीर को इस्तेमाल करते हैं, किस तरह हम प्रभु को समर्पित करते हैं और बलिदान करते हैं प्रभु को उसका आराधना करने के लिए। That is a true spiritual service of worship. और ये जो है सच्ची आराधना है करके प्रभु कहता है। See, it's very easy to give 10% of our income to God. और ये बहुत ही आसान बात है कि हम अपना दशमांश जो है इनकम का वो प्रभु को समर्पित करें। That is easier. ये बहुत ही आसान बात है। Praising and thanksgiving, that is also relatively easier. स्तुति और धन्यवाद करना ये भी बहुत ही आसान बात है। But giving our body, our life to the Lord continually is something greater. और हमारे शरीर को निरंतर प्रभु को अर्पित करना और प्रभु के लिए जीना ये बहुत ही बड़ी बात है। And Lord is eagerly pleased in those who are willing to offer their bodies to Him. और प्रभु जो है इन सभी लोगों से जो परमेश्वर को समर्पित शरीर प्रस्तुत करने के लिए जीते हैं, उन सभी से प्रभु बहुत ही प्रसन्न होता है। You know, in earlier time, how someone would sacrifice
to the Lord? पुराने नियम में लोग जो है किस तरह परमेश्वर को बलिदान देते थे? They would chop that animals into different organs, separate hands and head and everything separately. It is not just given en masse. और वो हम देखते थे कि पुराने नियम में जब मेल बलि करते थे, जब जानवर को बलि देते थे, तो सारे उसके अंग को वो अलग अलग करके काटते थे। Meaning it is not just generally a general offering. और ये कोई उदारता से देने वाला भेंट नहीं था। And organ wise organ it is offered to the Lord. और ये शरीर के अलग अलग भाग, अलग अलग अंग को वो समर्पित करते थे अलग अलग होकर। So in a spiritual sense we can think, my eyes I offer to the Lord. और आत्मिक तौर पर हम इसे सोच सकते हैं कि मेरे आँख को है जो प्रभु को मुझे समर्पित करना है। My mouth I offer to the Lord. मेरा मुंह जो है, मुख को जो है मुझे प्रभु को समर्पित करना है। My hands and my feet I offer to the Lord. मेरे हाथ और मेरे पैर मुझे प्रभु को भेंट देना है। That is the same principle is reminded in Romans chapter 6. और यही नियम जो है रोमियो के 6वें अध्याय में वापस दोहराया गया है। It is in verse 12 and 13 it says that do not let sin reign in your mortal body. और 12वां और 13वां वचन में रोमियो के 6वें अध्याय के अंदर कहता है कि तुम्हारे मरणहार शरीर में पाप को राज्य ना करने दीजिए। And he continued to say, do not go on presenting the members of your body to sin as instruments of unrighteousness. तुम्हारे शरीर के भाग को जो है वो अधार्मिक होकर ना प्रस्तुत करे, But present your organs to the Lord as instruments of righteousness. और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार बना के परमेश्वर को सौंपो। So God wants us to, God is expecting us to present all the parts of our body to Him as instruments or organs for righteousness. परमेश्वर चाहता है कि हमारे शरीर के सारे अंग जो है एक धर्म के हथियार बन के परमेश्वर को सौंपना है। In a way, what we are saying is all the organs of all the parts of my body, it is I committed, I have surrendered, I sacrificed to the Lord to do what is pleasing to Him. मानो ये ऐसा बात है कि मेरे शरीर के सारे अंग जो है मैं प्रभु को मैं समर्पित कर रहा हूँ, मैं बलिदान दे रहा हूँ। I have given my life to the Lord. मैंने मेरे जीवन को प्रभु को समर्पित किया है। My body is the temple of the Holy Spirit, it's entirely offered to Him. और मेरा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये पूरा जो है मैं प्रभु को समर्पित करता हूँ। My hands and my mind, everything is given to Him. मेरा हाथ पैर, मेरा आँख, मेरा दिमाग जो है सब कुछ प्रभु को बलिदान दिया है। So that is what will result in a sanctification. और ये सारे बातें जो है वो पवित्रता का फल लेकर आएगा। When Jesus was teaching His disciples in the Sermon on the Mount, जब यीशु प्रभु पहाड़ी उपदेश जब अपने चेलों को सिखा रहा था, two parts of the body especially He highlighted. और दो भाग जो है पर यीशु प्रभु ने जो है उसको जोर दिया। One is the eye, एक बात जो है आँख है, second is the hand. और दूसरा जो है हाथ। We read that in Matthew chapter 5, that passage from 27 to 30. इसे हम पढ़ते हैं मत्ती 5वां अध्याय 27 से लेकर 29-30 तक। It says that, verse 28 says that, I say to you that everyone who looks at a woman with a lust for her has already committed adultery with her in his heart. वहां पर कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। And then he is saying this radical statement the next, if your right eye makes you to stumble, tear it out and throw it out. और वहां पर आगे और एक गंभीर बात कहता है कि तुम्हारी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। Jesus used that strong, almost next to impossible thing. और ये बहुत ही गंभीर शब्द का प्रयोग वो कर रहा है जो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। So that people take it seriously. ताकि लोग जो है इसे बहुत ही गंभीरता से ले। So that we are challenged to preserve our eyes pure and holy. हमें चुनौती दी गई कि हमारे आँख को जो है उसे पवित्र और शुद्ध रखे। And the Holy Spirit will help us और पवित्र आत्मा जो हमारी मदद करेगा to cleanse our eyes. तो हमारे आँख को शुद्ध रखने में। And we can also say, I would rather pull it out and throw out than sinning. That is how the Holy Spirit challenging us. और पवित्र आत्मा में चुनौती देता है कि हम अपने आँख को अगर उससे गंभीर पाप करते तो उसे निकाल कर फेंक ही करके। I was tremendously encouraged and challenged. Something written about Sadhu Sundar Singh.
मैं बहुत ही गंभीर रूप से मैं एक प्रोत्साहित हुआ जो साधु सुंदर सिंह के बारे में कहा गया है। Somebody saw him in person, stated this. जो लोग उसे फिजिकली शारीरिक रूप से उन्होंने भौतिक रूप से देखा था साधु सुंदर सिंह को, उन्होंने कहा है The one single thing I remember about Sadhu Sundar Singh is एक बात जो है मैंने साधु सुंदर सिंह के बारे में जाना है वो ये है, there's a first, whenever I remember, that's the first thing comes to my mind. जब उनके बारे में सोचता तो एक बात जो है मुझे याद रहती है वो ये बात है, His eyes were so pure. उसके आंख जो है बहुत ही शुद्ध थे। So that is something which can encourage us. ये बात जो है हमें सबको प्रोत्साहित करती है। Some people who saw him remember that, जो जिसने उसे देखा है वो उसे याद करते हैं and that encouraged them. और उन्हें प्रोत्साहित किया है ये बात। Our eyes can be pure, हमारे आंख जो है उसे शुद्ध रहना है and Holy Spirit residing inside will help us. और पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है वो हमारी मदद करता है। And second thing, Jesus also taught about hands. और दूसरी बात जो है प्रभु सिखाता है वो हमारे हाथों के बारे में। Why Jesus taught? Jesus wanted to remind us these hands, organs like eyes and hands and every other belongs to Jesus. और प्रभु हमें ये याद दिलाता है, दोहराता है कि हमारे आंख, हाथ जो बाकी अंग है ये सभी प्रभु के हैं। It is these organs are not to be surrendered to sin. और ये हमारे शरीर के अंग जो है वो पाप को नहीं सौंपना है। So Jesus said, if your right hand is stumbling, rather cut it and throw it away. अगर तुम्हारा दाहिना हाथ अगर तुम्हें ठोकर खिला रहा है तो उसे काट कर फेंक दीजिए। It's better for you to go to heaven with one hand less. That's what Jesus told. ये अच्छी बात होगा कि अब एक हाथ के बिना आप स्वर्ग के अंदर जाए सिर्फ एक हाथ लेकर। So Jesus used a very strong language, challenging us for a यीशु प्रभु pure life. बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है और हमें चेतावनी दे रहा है। Because Bible says that as you are under grace, sin shall not have dominion in your life. और बाइबल हमें इस तरह कहता है कि अगर तुम अनुग्रह के अधीन हो तो पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगी। As New Testament Christian, that is possible. और नए नियम का जो मसीह है उसके लिए संभव है। Sin shall not have dominion over us. पाप जो है वो हमारे ऊपर प्रभुता ना करे। And the indwelling Holy Spirit will help us. और हमारे अंदर बसने वाला पवित्र आत्मा जो वो हमारी मदद करेगा। It's not as a commandment, it is mentioned as a possibility. Holy Spirit will do that work in us. और ये आज्ञा के रूप में नहीं बल्कि संभावना के रूप में बताया गया है कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। And just like that word temple brings thoughts of reverence. और ये मंदिर जो शब्द है ये हमें बहुत एक आदर को सूचित करता है। In many places in the scripture, that is what is used in connection with preserving our body for the Lord. और बहुत ही संदर्भों में कहा गया है कि इसी संदर्भ में कि हमारे शरीर को प्रभु के लिए सुरक्षित रखना। 1 Thessalonians chapter 4 verses 3 and 4 पहला थिस्सलुनीय उसका चौथा अध्याय उसका 3 और 4 वचन says that this is the will of God, which is your sanctification, that is you abstain from sexual immorality. वहां पर कहता है कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। Yeah, it's so clear. God's will for us is to preserve in sanctification. परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। And in verse 4, it says that each of us should know how to possess his own vessel in sanctification and honor. तुम में से चौथा वचन कहता है तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। Yeah. So in some versions it's written as that our body, we should learn to possess our body, which is used as a vessel, in a sanctification and honor. और कुछ बाइबल में भाग में ऐसा कहा गया है कि तुम अपने शरीर को पवित्रता और आदर के साथ अपने शरीर को आप प्राप्त करना जाने। Yeah, that is something we should learn. That is how it is written. और ये हमें जानना है, ये लिखा है। For example, a very small infants, they don't know how to keep them clean. और जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ये नहीं पता है कि किस तरह उन्हें साफ रखना है। Parents need to clean them. कि माता पिता जो है वो उन्हें साफ रखते हैं, शुद्ध रखते हैं। But as we grow, children grow, they learn to keep themselves clean.
जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वो सीखते जाते हैं कि कैसे शुद्ध या साफ रहना है। That is how it is. As you grow spiritually, we should learn how to possess this vessel in sanctification and honor. और उसी तरह जैसे हम बढ़ते जाते हैं आत्मिक रूप में, उसी तरह हमें जानना है कि हमारे शरीर को किस तरह, इस पात्र को किस तरह हमें पवित्र रखना है और शुद्ध रखना है। This verse, personally, very often it has helped me. ये जो वाक्य है ये मुझे व्यक्तिगत तौर पे मुझे बहुत बार प्रोत्साहित किया है। Many times I felt Holy Spirit reminding me that necessity to preserve my vessel, my body in a sanctification and honor. और पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया कि कई बार कि मुझे मेरे शरीर को पवित्र रखना है, प्रभु के लिए आदर योग्य रखना है। You know, people call building with a cross and all, no, church building. हम देखते हैं कि बहुत चर्च भवनों का निर्माण करते हैं क्रॉस के साथ और बड़े बड़े भवनों के साथ मंदिर का निर्माण करते हैं। So they will not damage something called church means that building, nobody will damage it. और उस चर्च के भवन को कोई भी उससे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। Nobody will go into a church building and smoke a cigarette. कोई भी चर्च भवन के अंदर जाकर कोई भी धूम्रपान नहीं करेगा। Nobody will go with a bottle of alcohol and inside the church building and drink. कोई भी चर्च के अंदर जाकर कोई शराब नहीं पिएगा। Nobody will go take a mobile, go inside the church building and watch some dirty video. कोई भी चर्च भवन के अंदर जाके कोई भी गंदे अश्लील चित्र को नहीं देखेगा मोबाइल में। The idea is that this is a church building, this is to be respected. और इसका उद्देश्य ये है कि ये जो चर्च का जो भवन है इसका आदर होना चाहिए। And it is considered as sacred. और ये एक पवित्र माना गया है। So God wants us to consider our body as sacred. और उसी तरह प्रभु चाहता है कि हम अपने शरीर को भी इसे आदर योग्य समझे, And पवित्र समझे and preserve in sanctification and honor. और उसे सुरक्षित रखे पवित्रता के लिए और आदर योग्य बनाने के लिए। I should not defile my body. मैं अपने शरीर को खराब नहीं कर सकता। In one of the psalms there is a verse which says, I will not place anything in front of my eyes which defiles me. और भजन संहिता में इस तरह कहता है कुछ में कि मैं अपने आंखों के सामने कोई ऐसी चीज नहीं रखूंगा जिसके द्वारा मैं खराब हो जाऊं। So that is something which we can keep on remind ourselves. ये ऐसी बात है जो हमें बार बार जो याद करनी है। When you are using mobile, we need to use mobile phones. हम सबको जब हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं हम सबको मोबाइल का इस्तेमाल करना We चाहिए। need to use laptops and computers. हम सबको लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करना चाहिए। Some of you may be using TV to watch news. आप लोग में कई लोग जो है वो टीवी को देखते हैं समाचार देखने के लिए। But be determined, I will not defile my eyes. तो हमें ये सीखना है कि मैं अपने शरीर को, मेरा आँख को मैं इससे खराब नहीं करूंगा। This is the temple. This is a temple. I need to preserve it in sanctification and honor. और ये मेरा शरीर जो है ये परमेश्वर का मंदिर है, मैं इसे सुरक्षित रखूंगा। Sometime I remember the Lord used to challenge me in my younger days, like eyes are like a door. मैं जो एक बात मेरे जवानी के दिनों में मुझे प्रोत्साहित किया, मेरा आँख जो है वो Like a door, दरवाजा. हाँ, एक डोर के दरवाजे के जैसा है। So आँख जो है what I allowed through my eyes is it enters, it registers in my life. जो मेरा आँख के द्वारा जो मैं अनुमति देता हूँ, जो वो आँख के द्वारा मेरे अंदर प्रवेश करता है, जो कुछ भी मैं देखता हूँ उसके द्वारा It's very hard to delete. मेरे आँख के अंदर जो कुछ भी प्रवेश करता है उसे बुझाना, निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। Now I have seen my own life in my unconverted life, all the bad movies I have seen and all. It took years to delete, remove the effects of those things. मुझे याद है कि जब मैं परिवर्तित नहीं हुआ था उस समय में मैंने जो कुछ चित्र देखे थे वो मेरे अंदर बहुत साल आए थे, उसे निकलने में बहुत ही मुश्किल हो रहे थे, बहुत समय लगा उसके लिए। But now those of us who are saying we are believers, we are disciples, जब हम अभी कहते हैं कि हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, आत्मिक कहते हैं, we are children of God. हम परमेश्वर के संतान हैं। We should never forget my eyes is part of the temple. और हमें ये बात भूलना नहीं है कि मेरा जो आँख है वो परमेश्वर का मंदिर का ही भाग है। Through these doors, I will not
allow things which will defile me. और इस दरवाजे के द्वारा जो आंख है इसके द्वारा मैं किसी को भी आने की अनुमति नहीं दूंगा जो खराब करे, Which will remain inside me for years. It is very hard to take जो it मेरे out. अंदर बस जाए सालों सालों के लिए, जो मुझे खराब करे। The best thing is to protect, shut the door, keep. तो ये अच्छी बात है कि हम अपने दरवाजे को बंद कर दे, अपने आंखों के दरवाजे को। In many places, the Bible encourages us to discipline our body. बहुत जगहों में बाइबल हमें बताता है कि हमारे शरीर को हमें अनुशासित करना है। I read somewhere what Elizabeth Elliot said. मैंने कहीं पर पढ़ा था एलिजाबेथ एलियट के बारे में। No, she is the wife of that missionary Jim Elliot. वो एक मिशनरी जिम एलियट की एक पत्नी है। So she said something. Discipline for the Christian begins with the body. वो कहती है कि मसीही लोगों के लिए अनुशासन शरीर से शुरू होता है। We all have just one body. हम सबके पास सिर्फ एक ही शरीर है। We don't have 100. We don't have a standby. हाँ, हमारे पास कोई सैकड़ों शरीर नहीं है, या फिर और एक स्टैंड बाय कोई शरीर नहीं है एक्स्ट्रा। There is just one. सिर्फ एक शरीर है हमारे पास। It is in this body which is given to us as a primary material to offer as a sacrifice. ये शरीर जो दिया गया है, जो प्राथमिक सामग्री है, जो हमें बलिदान के लिए दिया गया है। शरीर The passions, the desires of this body, हमारे शरीर के अभिलाषाएं और इच्छाएं सभी कुछ, even the legitimate desires also should be in that boundary. और हमारे जो सही इच्छाएं है वो भी एक बाउंड्री में होने चाहिए, एक सीमा में होने चाहिए। So she was saying, we cannot say, I have given my hearts to Jesus, but keep the body for ourselves. हाँ, वो कहते हैं कि हम ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने मेरे हृदय को प्रभु को दिया है और शरीर को अपने लिए रख लिया है। That is a lie, saying that I have given my heart to Jesus, but my body I leave for myself. और एक झूठ बात होगा कि मैंने मेरे हृदय को प्रभु को दिया है और शरीर को मेरे लिए रख लिया है। If I have given my heart to Jesus, we have to give our body also to Jesus. अगर मैंने मेरे हृदय को प्रभु को दिया है तो मेरे शरीर को भी प्रभु को देना है, तो सच्ची होगी। So how do we look at it? It's not like it's such a struggle. और हम इसे किस तरह देखते हैं? सिर्फ ये ऐसे नहीं कि एक गंभीर बात है, एक मुश्किल बात है। It should be a joy for us because Jesus offered his body for us. और ये हमारे लिए आनंद की बात होनी चाहिए, क्योंकि यीशु प्रभु ने अपने शरीर को प्रभु परमेश्वर को दिया था। He was allowed himself to be crucified to save us. उसने अपने शरीर को क्रूसित करने के लिए उसने अनुमति दी, हम सबको बचाने के So लिए। it should be a joy in our heart. Yes, Lord, I'm more than happy to offer my body. You gave yourself to me. It is हमारे अंदर ये खुशी की बात होनी चाहिए, आनंद की बात होनी चाहिए कि जो शरीर मुझे दिया गया है, मैं इसे देने के लिए बहुत ही प्रफुल्लित और खुश हूँ। And as an expression of my gratitude, happily and voluntarily, Lord, here is my body. I offer to you as a sacrifice. और ये धन्यवाद की भावना के साथ हमें तैयार होना चाहिए कि मैं मेरे शरीर को मैं प्रभु को देना चाहता हूँ, जिस तरह उसने मेरे लिए किया है। Paul in one place is using this expression, that is in 1 Corinthians chapter 9. और पौल जो है एक संदर्भ में इस तरह कहता है, पहला कोरिन्थियों 9वें अध्याय में verse 27 वहां पे 27वें वचन में कहता है, says that I discipline my body and make it my slave. वो कहता है कि मैं अपने देह को मारता कूटता हूँ और वश में लाता हूँ। Yeah, so there is a place for disciplining our body. और वहां पर एक जगह है जहां पर एक भाग है जो हमारे शरीर के अंदर, वो जिसे अनुशासित करना है हमें शरीर को, So that it remains as a slave for Jesus. ताकि वो हमारा शरीर जो है वो प्रभु के लिए दास बने, गुलाम बने। He continues to say, otherwise I can preach to others, but I myself will be disqualified. और आगे चल के वो कहता है कि मैं दूसरे लोगों को प्रसन्न करूं, लेकिन मैं खुद को नाश कर डालूं। So it's very important to discipline our body. ये बहुत ही प्रमुख बात है कि मैं अपने शरीर को मैं अनुशासित करूं। It should be applied in things, legitimate needs like eating food, sleeping, etc. ये सारे बातों को लागू होता है जाकि हम भोजन खाते हैं, सोते हैं, इन सारे चीजों में भी We should do it rightly. हमें सही तरह से इसे सब सारे चीजों को करना And है। in a way, it applies also. Sometimes it reminds me, when I am about eating unhealthy food. और ये ऐसे बात में भी लागू होता है जहां पर हम कुछ चीजें खाते हैं जो
हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है। It's good to remind ourselves. ये याद करना बहुत ही अच्छी बात है हमें खुद के This लिए। body I have given to Jesus. ये शरीर जो है मैंने प्रभु को दिया है This is a temple. और ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। So I need to do all that is practically possible to preserve it as a temple for the Holy Spirit to dwell in. और तो ये मेरे शरीर जो है इसे हमें ऐसे रखना है कि ये प्रभु के लिए सुरक्षित रहे ताकि इसके अंदर प्रभु वास करे। I should not hurt this temple. मुझे इस मंदिर को चोट नहीं पहुंचाना है। Yeah, before concluding, आगे हम निष्कर्ष में देखते हैं। one verse in Ephesians chapter 4, ये एक बात जो है एफेसियों के पत्र में कहता है, verse 30, उसके चौथे अध्याय के 30वें वचन में says कहता है, that do not grieve the Holy Spirit of God. पवित्र आत्मा को शोकित मत करो करके कहता है। So I was reminded when we abuse our body, which is a temple of the Holy Spirit, जब हम हमारे शरीर को चोट पहुंचाते हैं, गाली देते हैं, when you are offering our body to sin, जब हम अपने शरीर को पाप के लिए सौंपते हैं, and when you neglect our body, we defile it. जब हम नजरअंदाज करते हैं शरीर का तो हम इसे खराब करते हैं। What are we doing? तब हम क्या करते हैं? We are grieving the Holy Spirit that is indwelling in us. तब हम क्या करते हैं कि हम अपने अंदर जो पवित्र आत्मा जो वास करते हैं उसे हम दुखी कर रहे हैं, उसे शोक पहुंचा रहे हैं। So may God these thoughts help us तो ये सारे बातें जो है हम सबको मदद करे and remind ourselves that this body God has given, it's a privilege. और हम ये याद करें कि परमेश्वर ने जो शरीर दिया है To look after, इसे सुरक्षित रखना है yeah, look after this as a temple. और इसे हम देखें कि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, Because the Holy Spirit is indwelling in this body. क्योंकि पवित्र आत्मा जो इसके अंदर वास करता है। Most important thing is to preserve it pure and holy. बहुत ही प्रमुख बात यह है कि इसे पवित्र रखे और शुद्ध रखे, Sanctified, set apart only for Jesus. पवित्र बनाया और इसे प्रभु के लिए रखे। So may God really challenge us and encourage, dear brothers and sisters. तो प्रभु हम सब के लिए प्रोत्साहित करे और हम सब कुछ चुनौती दे कि हम इसके द्वारा जी सके। As the Lord has done so much for us, अब जैसे कि प्रभु ने हम सब के लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने He offered Himself to redeem us. और उसने अपने आप को सौंप दिया ताकि हम सबको छुटकारा मिले। In return, as an expression of thankfulness, तो इसके प्रति हम सबको एक धन्यवाद की भावना के साथ हम इसे समर्पित करें। we live today because the Lord has paid a price and redeemed us. हम आज जीते तो इसकी वजह से कि प्रभु ने अपने आप को सौंप दिया था, So therefore, उसे छुटकारा दिया है। remind us, I do not belong to myself. ये हमें याद दिलाते कि मैं खुद के लिए नहीं हूँ, I should have been lost, मैं खो गया होता, दुनिया में नाश हो गया होता, but the Lord has redeemed me by being His own life to me. लेकिन प्रभु ने जो है अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन को बलिदान देने के द्वारा उसने मुझे छुटकारा दिया है, उसने उद्धार दिया है। Yeah, so it is only natural that I joyfully offer my body to Him as a sacrifice. ये एक नैसर्गिक बात है कि मैं एक खुश होकर, आनंदित होकर मैं अपने आप को समर्पित करूं। Amen. आमीन।